एवरीवन, जायके के सफर के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है जो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाली हैं। तो जगन्नाथपुरी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। और वहाँ के छप्पन भोग का जो प्रसाद है वो तो हर जगह बहुत ही फेमस है। तो आज हमारे साथ हैं अलका जी, जो कि हमें छप्पन भोग के बारे में बताएंगी। और अलका जी से बात करने से पहले हम थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो उड़ीसा से हैं और फूड फोटोग्राफी, फूड स्टाइलिंग का काफी शौक है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे उनका एक माइक्रो ब्लॉग है, और अगर आप उनका ब्लॉग देखेंगे तो आपको वहाँ पे उड़ीसा के काफी सारे जायके नजर आएंगे। तो अलका जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। Thank you for inviting. It's a pleasure. So, before we start, how do you, matlab, your journey, how it actually came through this, that now you relate yourself with food and food stories and food photography and all? Uh, my food blogging journey started in 2014, and that is very accidentally because I am a person who has never entered into kitchen before marriage, and after marriage, I learned cooking, but though pretty good knowledge of that, I have never cooked. Uh, Life was going on just like that, and suddenly a page comes in a depression when I went into a depression for a very long period. And during that time I withdraw into a shell, like I was not talking too much. The only thing which kept me was my love for food, and I kind of a very relate to that food at that time. So that phase continued for a very long time, and after my son finished his schooling in 2014, I decided to jot down those, digitally record those recipes which actually helped me coming out of that depression, and into just a blog. So Culinary Express was, accidentally my blog started in 2014. There was never a plan for that, to be a blogger, to be a photographer. Is absolutely, I have a full-time job, so my life was all set in that direction. So gradually in 2014, I started sharing my recipes. I find people relating to it, and just it was just an hobby and going on. Then I realized the presence of Odia food is not that much in the digital media, and I started sharing more and more of my recipes, which are like very healthy. Hmm. All of so from there, just gradually I picked up photography because of a blog. You have to be your photograph. You have to click a picture of Yeah. your food. So that one things led to other, and then styling comes, and then from 2017 onwards I am a full time, I am a professionally into food styling and photography, Wow. besides my love for sharing my Odia food. So this So is you how my journey has been. beautiful journey. Wow. And so you like do professionally food photography and styling for others also. Yes, I do. Wow. From 2017, I started doing food photography for others and styling also. Besides that, I have started also, I'm working with a professional chef in curating menus for their restaurants also. As far as Wow. Odia food is concerned, I have not done much of other food, but I have a passion for my taking my food outside. So I have doing this with the chefs also. Of course, and I also feel that जो खाना खा के हम बड़े होते हैं उसके लिए हमारे अंदर एक अलग ही एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो Yes. wow, that's amazing. So before we actually dive into Chhappan Bhog, उससे पहले can we talk a little bit about the Odia cuisine and what is your perception and your take on Odia cuisine? Okay. Uh, Many people know that since I am from this Odisha and I'm born and brought up in Bhubaneswar itself, the capital city. So, the food has been an integral part of our life. Uh, Starting from my mother, I learned and everything. But the only thing which has really, really hit my chord is this: our food is very healthy. द ओडिया फूड आप अगर जनरली बात करें तो वो बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि सारे फूड जो होते हैं पहले बॉइल्ड हम लोग करते हैं. इट्स बॉइल्ड फर्स्ट एंड देन यू ऐड अ तड़का टू इट.
इससे क्या होता है कि व्हेन यू प्रिपेयर फूड बाय बॉइलिंग और बाय स्टीमिंग, इसमें लेस ऑयल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एंड इट इज वेरी इट सूदेस योर स्टमक, इतने अपसेट नहीं होता है, एसिडिक नहीं होता है फूड। सो ये तो पहले मुझे अट्रैक्ट करता है। तो फर्स्ट हॉलमार्क अगर उड़िया फूड के बारे में बात करें तो हेल्दी होता है। सेकंड अगर देखें तो उसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल होता है, मिनिमम यूज ऑफ ऑयल, एंड स्पाइस भी वेरी पिकुलियर कॉम्बिनेशन में, ऑल स्पाइसेस नहीं यूज होता है, ठीक है। सो इट्स मोर ऑफन रिटेनिंग द फ्लेवर ऑफ द फूड, एंड इसीलिए वो एंड सीजनल एंड लोकल प्रोड्यूस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे फूड में। सो वैसे टू सम इट अप ऑल, ओडिया cuisine is healthy, uses less of oil, less of spices, and uses the seasonal and local produces. Wow, And not said it it's ना। ब्यूटीफुल एक्चुअली। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट अभी आपने जैसे उड़िया cuisine की बात करी, तो हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं जो भी अपने रीजन से हैं, एक चीज जो सारी cuisines में कॉमन है वो ये है कि हर खाना अपना लोकल प्रोड्यूस यूज कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो आई थिंक ये एक एस्पेक्ट है जो अभी के टाइम में फूड इंडस्ट्री में भी काफी ट्रेंड कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी, लोकल प्रोड्यूस, फ्रेश ये सारे वेजिटेबल्स। यस, आज जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की और गोइंग बैक टू द रूट्स, ये उड़िया कुजिन में बहुत पहले से ही है। हम लोग का खाना कभी चेंज हुआ ही नहीं है, इज वेरी 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 हेल्दी, पहले से ही था, लोकल प्रोड्यूस का यूज होता था खाने में। सो इट्स वेरी आज when people talk about sustainability, we find okay, we have been doing this now people are talking about it. Wow. So that is about Odia cuisine. And you know, when people say Odia cuisine, the first thing which pops up into your mind is Rasgulla and Chena Poda, and then you start into the fight of Bengal and Odisha that who created what. So you know, we forget that we didn't have boundaries before, and now we have political boundaries around the state. So now, like we're going to talk about the temples today. So Jagannath Puri is one of the temple we know is very popular, and it's actually a very very holy site for all the people in our country of Hinduism. So are there other religious sites equivalent to that temple? Yes, there are Odisha अगर आप देखा जाए तो इट्स अ लैंड ऑफ टेम्पल्स। आप इसको अब किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, थ्रू आउट आपको मंदिर ही मंदिर मिलेगा, एंड पर्टिकुलरली भुवनेश्वर इज कॉल्ड अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। ऑलमोस्ट बोला जाता है कि 1000 टेम्पल्स यहाँ पर थे, अभी बहुत सारे बरीड है, एंड मैं एग्जैक्टली नंबर्स नहीं बता पाऊंगी, अराउंड 700 अराउंड 700 तो ऐसे भी आपको मिल ही जाएंगे एक ही सिटी में, जो बता रही हूँ। सो आप उसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कल्चर में मतलब फूड एंड रिलीजियन का कितना प्रिडोमिनेंट इन्फ्लुएंस होगा हमारे उड़ीसा में टेम्पल्स का। सो जबकि चारों ओर उसके तो देखा जाए तो आप कहीं भी जाइए, सो इट्स मोर ऑफ टेम्पल, इट्स नॉट जगन्नाथ टेम्पल। So 3 types of temples you'll be seeing here, like Vishnu temple, like Jagannath is an avatar of Krishna and Vishnu, so it's a Vishnu temple. So Shiva temple आपको मिलेगा बहुत सारे जगह पे, जैसे भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, वो शिवा टेम्पल है, ठीक है। एंड शक्ति पीठर्स, like we worship Durga, so in the various forms of Shakti. So आपको कटक में कटक चंडी मिलेंगे, बिमला टेम्पल मिलेंगे, बहुत सारे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बिकॉज बुद्धिज्म इधर बहुत प्रैक्टिस होता था, सो बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा वेरी स्पेशल सन टेम्पल है जो कोणार्क में है, सन गॉड को हम मानते हैं, सो उनका एक स्पेसिफिकली टेम्पल है कोणार्क में। एंड आपको गणेश जी का मिल जाएगा, मतलब हनुमान का यहाँ पर बहुत हम मानते हैं, सो हनुमान हर मंदिर में, ये सारे हर सिटी में आपको ये सारे मिल जाएंगे। I think, wow.
एंड आई एम श्योर अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई होगी, इसके अलावा भी नहीं, बहुत सारे बहुत और टेम्पल्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। so the thing is that हिंदुइज्म में अगर हम टेम्पल्स की बात करते हैं तो मेजरली 3 या 4 टेम्पल्स ही होते हैं, एज यू मेंशन। Yeah. विष्णु और कृष्ण जी का रहता है, शिव जी के हाँ, टेम्पल्स मैक्सिमम आजकल जहाँ पे भी जाते हैं हाँ, शिव जी का सबसे ज्यादा आई थिंक है। देन हाँ, हनुमान जी के टेम्पल्स रहते हैं, सो एंड हाँ, देन ऑब्वियसली एज यू सेड दुर्गा माँ इन हर वेरियस फॉर्म्स। हाँ, सो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि yeah, अभी आपने बताया उड़ीसा हैज सो मेनी टेम्पल्स, yeah, so we'll talk about the food later, but what about yeah. the street food, which is around these temples? Okay, Are okay. we having some, you know, जैसे in Delhi what we usually see is, especially अगर हनुमान जी का टेम्पल है तो बाहर एक आलू और कचौड़ी वाला जरूर मिलता है, तो we attach Yeah. आलू कचौड़ी with Hanuman temple. So how is the street food culture in Odisha? Uh, दो दो किस्म से आई विल हैंडल दिस इशू। इज लाइक स्ट्रीट फूड एक अलग एरिया है, एंड स्ट्रीट फूड अराउंड द टेम्पल्स एक हम्म। अलग खाना। जिस तरह से नॉर्मली जो स्ट्रीट फूड बोलते हैं तो इट डजंट हैव एनी, उसमें प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ आता है, राइट। सबसे फेमस है हमारे दही बड़ा आलूदम उड़ीसा के, अगर नॉर्मल स्ट्रीट फूड में जिसमें सब कुछ जाता है। लेकिन वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट वन, बिकॉज यू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स। सो टेम्पल्स जो होते हैं तो वहां पर ज्यादा लोग पिलग्रिमेज, वो लोग जाते पिलग्रिम्स आते हैं, ठीक है। तो खाना तो मंदिर दर्शन हो गया, उसके बाद ऑब्वियसली हमको खाना चाहिए, राइट। सो उसके चारों ओर आपको डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे दुकान मिल जाएंगे जो कि स्ट्रीट फूड बेचते हैं। सो ईच टेम्पल हैज इज ओन स्पेशलिटी। बट अगर हम कैटेगरी जनरल करें तो आपको उड़ीसा में हर टेम्पल में छेना बेस्ट मिठाई आपको जरूर मिलेगा। छेना बेस्ट, बिकॉज दिस इज विदाउट दैट कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हम्म। आपको हमेशा मिल जाएगा पूरी एंड सब्जी में हम लोग का डालमा मिलता है, पूरी एंड डालमा आपको मिलेगा। एक काकरा पीठा मिलता है जो कि सूजी से बनता है या मैदे से बनता है या आटे से भी बनता है। स्टफिंग होता है उसके अंदर, नारियल और जैगरी के स्टफिंग दिया जाता है मीठा वाला। उसको भी डालमा के साथ सर्व करते हैं। सो पूरी डालमा हो गया, काकरा डालमा हो गया, मालपुआ के साथ डालमा हो गया। मतलब एक मीठा के साथ एक बैलेंस करते हैं। एक डालमा जो आप जानते हैं दाल विद द वेजिटेबल्स बनता है। सो इट्स इन अ मील हो जाता है मंदिर के। बिकॉज उस समय हम जब मंदिर जाते हैं तो प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते, तो उस तरह से जो खाना मिलता है वो वाला सब आपको उधर मिल जाएगा। उसके बाद अभी जगन्नाथ टेम्पल में आप जाएंगे तो बाहर आएंगे तो आपको समोसा भी मिलेगा, ठीक। वाओ। समोसा मिलेगा, हाँ बाहर मिलता है। समोसा के साथ आप डालमा खा सकते हो। बड़ा, हम लोग को बड़ा जो है वो भी मिलता है उसमें, लेकिन कुछ भी नहीं होता, प्लेन, मतलब जिंजर एंड इसका आपको मिलेगा। सो जो भी स्ट्रीट फूड होता है, जैसे आपने बोला समोसा मिलता है या कचौड़ी मिलता है, इधर वही ट्रांसलेट इनटू मालपुआ एंड डालमा। चूड़ा घसा, चूड़ा से बनता है, चूड़ा मतलब पोहा से बनता है, एक हम्म। चूड़ा घसा डालमा बनता है। नहीं तो पूरी डालमा मिल जाता है, गुलगुला मिल जाता है। जो आप गुलगुला हर हर सिटी में वो हर मिलता है ना, स्टेट में रहता है, राइट। स्ट्रेट मिलते हैं। सो वो भी मीठा होता है सौंफ के साथ, उसको भी डालमा के साथ आप खा सकते हैं। ये सारे के साथ आपको सब सिटी सब टेम्पल्स में एक चीज कॉमन मिलेगा, एक मीठा। एक मीठा वो छेना से बनना होना चाहिए। जैसे जगन्नाथ मंदिर के बाहर आएंगे तो खीरा मिलता है, खीरा मतलब थिकन्ड मिल्क, ठीक है। मिल्क को थिकन उससे उसको वो मिलता है। उसमें सौरभ पुड़ी मिलता है, जो क्रीम होता है ना, जब आप दूध को उबालते हैं ऊपर जो क्रीम हम्म। होता है उसको वेरी वेरी डेलिकेटली वो लोग ऊपर उठाते हैं। बड़े बड़े वाओ। बर्तन में जब होता है ना, विराट बहुत बहुत बड़ा बर्तन में वो दूध उबाला जाता है। सो मलाई ऊपर मलाई। का जम मलाई जो उसको ना एक परत जमती है ना मलाई का। सो उसको एक पैनकेक की तरह वो उठाते हैं, मतलब दो लकड़ी से ऐसे उठाते हैं एंड उसके अंदर मतलब रोल करके आपको खाने के लिए देते हैं। उसको सारा पुड़ी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये वाओ। वाला जगन्नाथ टेम्पल। अगर आप बलदेव जी सेम है केंद्रापड़ा में, वहां पर जाएंगे तो आपको रसावड़ी मिलेगा खाने के लिए। ये सारे नमकीन चीजों के साथ आपको एक ये चीज भी बाहर मिल जाएगा। आप जो हम लोग का क्या बोलते हैं, फेणी बोलते हैं हम लोग, खजा या फेणी बोलते हैं।
वो वाला मिठाई भी वहां पर मिलेगा आपको। छेना से बनता छेना ताड़िया मिलेगा आपको, रसगुल्ला भी मिलेगा मंदिर के बाहर आपको, छेना पोड़ो भी मिलेगा। एनीथिंग टू डू विथ छेना आपको हर किसी मंदिर में आपको स्ट्रीट फूड के साथ ही ये बेचा जाता है। सो एवरी वन मेक्स, सो आपको एक पूरा भरपूर खाना मिल जाता है। जैसे कि सब्जी हो गया, एक पूरी जिस जिस एरिया में जो समोसा ले सकते हैं बड़ा ले सकते, लेकिन इसके साथ यू हैव ए चॉइस ऑफ छेना बेस्ट कोई भी मीठा आप उसको। ये वाह हमारे वहाँ के स्ट्रीट फूड कल्चर में जाते हैं। वाह। सो ये छेने वाली बात नहीं, मेरे को मतलब ये ऐसा फील हुआ कि बंगाल में भी छेना का कितना ज्यादा यूज है। सो ये दो Yes. स्टेट्स का जो, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट मिठाई, Yeah. तो इट्स Yeah. वेरी वेरी कॉमन। Also, Yes. the way you mentioned malai का pancake Hmm. type बना के रोल, so there's a similar dessert, you know, in UP, उसके अंदर थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मलाई Hmm. पान की तरह in a Yeah. triple fold, so it's a very melt in the mouth वाला Yeah. चीज हो जाता है। so amazing, मतलब इतना सारा खाना सिर्फ स्ट्रीट फूड और मंदिर के अराउंड ही अगर मिल रहा है, तो आई कैन नॉट इमेजिन कि छप्पन भोग में भी क्या क्या होगा। सो Yeah. बिफोर नाउ, छप्पन भोग की बात करते हैं, तो छप्पन भोग को हम मतलब छप्पन भोग क्यों कहते हैं? लाइक ऐसा हार्डली कोई मतलब मंदिर होगा जहाँ पे यू नो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ भोग होंगे एंड मे बी ऑर्डर होता होगा। तो Yeah. अभी हम छप्पन भोग की तरफ चलते हैं। तो छप्पन भोग को छप्पन भोग क्यों कहते हैं? मतलब इंडिया में काफी सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ भोग ही रहता है या वही चीज चढ़ना है। तो आई एम श्योर इसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी एंड कुछ जरूर इंटरेस्टिंग सी कहानी होगी। Yeah. इसको छप्पन भोग क्यों बोला जाता है? वेरी इंटरेस्टिंगली सबको भी ये आप सबको पता होगा कि जगन्नाथ जो है विष्णु के अवतार है। सो कृष्णा जी मतलब जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो वहीं से आता है ये 56 का जो नंबर्स का जो आता है, बिकॉज ही इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु जगन्नाथ जो है। सो जब कृष्णा जी थे तब भी जब उनके गांव को बचाने के लिए, रेनगढ़ से बचाने के लिए, उन्होंने अपने टिप के ऊपर, लिटिल फिंगर के टिप के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था, उसके नीचे उनके गांव वाले सारे आके रह सके। सो वो कृष्णा जी ना दिन में 8 बार खाते थे, 8 टाइम्स ही यूज्ड टू ईट। लेकिन वो 7 दिन तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं अपने गांव वाले के लिए। सो भूखा रहकर उनको, सो एज अ ग्रैटिट्यूड, तो गांव वालों ने 7th डे को ईच दिन का 8 फीट इंटू 7 डेज, तो उसको 56 टाइप्स का भोग उन्होंने उनको ऑफर किया था, क्योंकि 7 दिन के लिए उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो तब से ये 56 का जो है ना, 56 भोग, 56 56 टाइप्स ऑफ भोग। लेकिन अब जन्माष्टमी में नॉर्थ में अब ये सारे 56 भोग जन्माष्टमी के दिन ही देते हैं, ठीक है, जब कृष्णा का। लेकिन जगन्नाथ में ये हर दिन लगता है, मतलब सिंस इनका इनकारनेशन है तो वही 56 भोग, उससे मतलब उससे ज्यादा होता है, उससे कम नहीं होता। तो 56 is the minimum food that is being offered to Lord जगन्नाथ। लेकिन ये जगन्नाथ की किसी में ये नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट ड्रॉइंग दिस स्टोरी जस्ट टू इमेजिन दैट कि वहां से आया होगा। इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन जगन्नाथ पुराण की ये होगा, क्योंकि जगन्नाथ के पास अगर आप गिनती करें तो 56 से ज्यादा भोग लगता है। तो डेली बेसिस पे जो भोग लगता है 56 से ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। Oh my God. So, जैसे जो आपने बताया गोवर्धन पर्वत का, हाँ, तो हाँ, जो जो वो हुआ था इंसिडेंट, दैट गांव इज इन उड़ीसा? नो, क्योंकि मैं बोली ना, इट इट्स ना यूपी, आपने जो इट्स भी इन यूपी, मतलब राइट? या हाँ। सो वो है जगन्नाथ है ना, इनकारनेशन ऑफ वही विष्णु है, एंड कृष्णा भी वही है। सो वही वही थिंग्स आता जाता है ना, मतलब दैट इज अ रिलेटिविटी, बिकॉज जगन्नाथ और कुछ नहीं है, एक और अवतार है। जैसे कृष्णा एक अवतार थे, जगन्नाथ एक अवतार है विष्णु के, दोनों ही सेम अवतार है। तो उस हिसाब से ये एक ह्यूमन फॉर्म, जैसे कृष्णा जी ने ह्यूमन फॉर्म लिया था, तो जगन्नाथ भी ऐसे ही है, तो हमारे जो तरह ही ये है। राइट,
तो जो ये छप्पन भोग है, ये जगन्नाथपुरी के मंदिर के अलावा भी किसी और मंदिर में होते हैं आसपास? आ, नहीं, ये बस ओनली जगन्नाथ मंदिर में आपको हाँ। 56 भोग में, और किसी मंदिर में नहीं होता इतने वैरायटी, क्योंकि जगन्नाथ हमारे लिए उनके साथ हमेशा एक ह्यूज, मतलब हिज अ ह्यूज, मतलब डेटी है, इतना छोटा नहीं है कि आप देख नहीं सकते, इतना बड़ा है। तो उनका सारा कुछ बिग है, ठीक है। उनका भोग भी बड़ा है, उनका आकार भी बड़ा है, उनका मतलब हर हरकत जो होता है ना, उनका पिकनिक भी बड़ा होता है, रथ यात्रा, आई मीन ह्यूज एंड एनीथिंग। सो और उसके अंदर जितने और दूसरे कंपेयर टू अदर थिंग्स, किसी के पास इतना नहीं है। वो एक राजा है, मतलब देवता का राजा है। सो उनके पास जितना मतलब प्रॉपर्टी है, वो भी दूसरे टेम्पल्स में नहीं है। तो इतना सारा चीज करना, मतलब इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, और फाइनेंशियली भी नहीं है, बट ही इज अ रिच, राइट। ही इज अपना सब कुछ है, सो ही कैन एंजॉय हिज 56 मील्स। वाओ। सो अब जो ये हम छप्पन भोग की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ जो डिशेस हैं, जो भोग लगता है, डिशेस नहीं बोलना क्या चाहिए, प्रसाद है जो, प्रसाद तो है? वो जो कुछ कुछ आप बताइए क्या क्या बनता है, किस किस तरीके से वो सर्व होता है? जो प्रसाद हम लोग जो बोलते हैं, वो एक्चुअली 6 टाइम्स अ डे आप उनको भोग लगता है, 6 टाइम्स अ डे। सुबह का, ओ माय सुबह गॉड। 8 o'clock 6 टाइम्स लगता है। तो मतलब छप्पन पहला भोग जो 6 बार चढ़ता है या टोटल अलग मतलब अलग? ओके अलग ओके अलग टाइम पे, ओके। तो उनको चढ़ता है वो। जैसे सुबह का हो गया 7 बजे, हम्म। हम जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट करते हैं। सो उसमें से मैं तुमको दो सिंपल सी समझा देती हूँ। भोग एक होता है, उसको भोग बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कि धूप, धूप और भोगो, ठीक है। भोग, भोग या भोगो जो बोलते हैं ना, वो होता है नॉन कुक्ड फूड, और प्री कुक्ड होता है जो ड्राई आइटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे सुबह का इतना हेवी मील सो नहीं खाते, जैसे नॉर्मली हम लोग ब्रेकफास्ट में इतना हेवी नहीं खाते, सो वो भी इतना हेवी नहीं खाते। वो सारे क्या होते हैं कि आप जैसे आप अपना पफ्ड पैडी होता है ना, उसको, वो पहले से बनता है ना, उसको इमीडिएटली बनाने की जरूरत नहीं है। राइट। सो ड्राई आइटम्स, सो उसको बोलते हैं हम लोग भोगो। सुबह उनको भोगो दिया जाता है, जिसमें ड्राई आइटम्स जाता है, जो कुक्ड करने की जरूरत नहीं है, या प्री कुक्ड भी होता है, जैसे पीठा हो गया, एक कुछ प्री कुक्ड हो जाता है, तो उनको दिया जाता है। लेकिन जो 10 o'clock होता है ना धूप पर, मतलब उसमें से उनको सेकेंड 10 o'clock में और एक भोग लगता है, जिसमें से उनको आता है कुक्ड फूड। उसमें धूपो बोलते हैं, जो पूजा, मतलब पूजा करके भोग चढ़ाया हम्म। जाता है, तो वो कुक्ड फूड होता है। सो 3 टाइम्स अ डे वो कुक्ड फूड खाते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द 3 टाइम्स इन द मील्स जो होते हैं, उनको ड्राई फूड, मतलब ड्राई आइटम्स उनको भोग लगाया जाता है। ये उनका दिन का चर्चा है, जो खाना जाता है उनको। उसमें जैसे संखुड़ी बोलते हैं, जो कुक्ड फूड होता है उसको संखुड़ी बोलते हैं। जैसे राइस हो गया, राइस हो गया, दाल हो गया, करी हो गया, खट्टा हो गया, साग हो गया उसमें, एंड खीर, मतलब जो कुक्ड होता है, जो हो सकता है, मतलब 5 हम लोग बेसरो बोलते हैं, मतलब उसमें मस्टर्ड पेस्ट वाला जो डिश होते हैं, 5 किस्म, दाल 3-4, खिचड़ी 3-4 किस्म से बनती है, राइस 3-4 किस्म से उनका बनता है, दाल एक मीठी दाल बनता है, डालमा बनता है सॉल्टी वाला, करी भी बनता है। सो ये सारे मिला के ये जो कुक्ड फूड होते हैं ना, उनको दोपहर में लगाया जाता है, जो इसको आप वाओ। महाप्रसाद दोपहर में वो खाते हैं। उसके बाद शाम को 8 बजे प्री डिनर हम लोग शपर बोलते हैं, तो प्री डिनर में भी उनको ड्राई फ्रूट्स, एंड लास्ट में वो 10 बजे वो डिनर करते हैं। सो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भोग लगाया जाता, खाना हम जैसे देते हैं, एग्जैक्टली हम लोग जगन्नाथ में अगर जाएं तो आपको सेम ही मिलेंगे, बट बस वो भगवान है और हम इंसान है, और कुछ नहीं। राइट। लेकिन उनका जो एक्टिविटी जो होता है, हम दिन का जो जितना जैसे हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, जस्ट लाइक वी ट्रीट हिम एज एन इक्वल्स लाइक अस। सो उस तरह से खाना उनको दिया जाता है। तो जो छप्पन भोग आपने बताया, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे उड़िया खाने का जो है इन्फ्लुएंस है।
तो अभी तो आपको क्या लगता है, लाइक जब ये डिशेस बनती हैं, और अगर आपने जैसे कहा कि नॉर्थ में जन्माष्टमी के टाइम पे लगता है कई कई जगह छप्पन भोग, तो क्या वो भी डालमा और ये सब बनाते नहीं हैं या फिर? नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्थ एंड हमारे यहाँ का बस कॉन्सेप्ट वही है कि छप्पन, सिंस हम कृष्ण को वहां पर भी और यहाँ को भी कृष्ण का एक अवतार है, लेकिन खाना काफी अलग है, काफी अलग है। क्योंकि सिंस मुझे जितना लगता है, क्योंकि कृष्णा जी एक ग्वाले के घर में पढ़े थे, सो तो मिल्क, सिंस मिल्कमैन कम्युनिटी, तो उनको दूध, मलाई एंड ये मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते होंगे, इसीलिए जगन्नाथ जी का इन्फ्लुएंस, जगन्नाथ जी के मंदिर में इसका हेवी इन्फ्लुएंस है, मिल्क एंड मिल्क बेस्ड जितना प्रोडक्ट। एंड रेस्ट ऑफ जो कुक्ड फूड है, वो जो खाना घर से मंदिर जाता है, मंदिर से घर नहीं आता है। मतलब हम पहले एक जगह बसता है, उसके बाद हम जानते हैं कि मंदिर बनता है। सो मंदिर में जो बनता है, वो जो खाना हम जो नॉर्मली खाना खाते हैं, वही आगे जाके वो भोग होके चढ़ा जाता है। द ओनली थिंग इज दैट उसमें वो थोड़ा अलग किस्म से बना जाता है, घी जैसे, क्योंकि भगवान को लगते हैं। मुझे तो इतना ही डिफरेंस लगता है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है खाना छप्पन भोग देने का लिए। पहले सीरियल्स देते हैं या पहले मिल्क बेस्ड देते हैं, उसके बाद बेसन वाला कुछ चीजें देते हैं, उसके बाद सॉल्टी, देन स्वीट्स, देन ड्राई फ्रूट्स, देन कार्डमम बेस्ट, ऐसे कुछ देते हैं नॉर्थ में। लेकिन ये ऑर्डर ऐसा नहीं है। एवरी डे द सेम ऑर्डर, मैंने जो बोला वही ऑर्डर होता है। सुबह का खाने में ड्राई जाता है, 10 बजे पीठा, जितने किस्म के पीठा होते हैं ना उड़ीसा में, वो 10 बजे के इसमें चला जाता है, उसके साथ खिचड़ी जाता है, खिचड़ी, बिकॉज इट इज। देन दोपहर का मील जो होता है वो वेरी एलेबोरेट होता है, उसमें से आपको बोले बहुत सारे राइस, ये सारे हेवी कुक्ड एंड हेवी घी में बनाया हुआ वो खाना। देन शाम को वो अगेन ड्राई वाला आइटम्स होते हैं, रात को वेरी, जैसे हम लोग नॉर्मल वही दूध वाला, ये वाला चीजें हम उनको देते हैं। सो नॉर्थ एंड हमारे यहाँ पर से काफी अलग अलग भोग का है। वन बिंग प्रिडोमिनेंटली इज द दही का जो यूज होता है, क्योंकि नॉर्थ में माना जाता है कि दूध का फटना अशुभ है, मतलब आप नहीं देते हैं दही वाला। लेकिन यहाँ पर से स्पेशली हम लोग दही यूज करते हैं, जो जबकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्प्लिट मिल्क, ऐसा नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ को दही बहुत पसंद है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अगर टाइम होगा तो हम बात करेंगे उसके ऊपर, क्यों दही उनको बहुत पसंद है, इस क्यों मंदिर में ये दिया जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट जब आप पहले बता रहे थे कि मिल्क बेस्ड, छेना बेस्ड प्रोडक्ट, तो मेरे दिमाग में यही आया कि नॉर्थ में हार्डली, मतलब कहीं पे भी जो छेने का रसगुल्ला होता है, नॉर्थ में 2 रसगुल्ले चलते हैं, एक तो वो छोटा वाला होता है और एक छेने का बनता है। तो मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी मंदिर में कोई भी छेने के बेस की कोई मिठाई चढ़ रही हो। इनफैक्ट नॉर्थ में उतनी छेने के बेस की मिठाइयाँ भी नहीं होती जब तक कि आप कोई बंगाल स्वीट शॉप में ना जाओ। तो ये चीज काफी मतलब रेलेवेंट थी। और एक और चीज मतलब वर्थ मेंशनिंग है कि जैसे आपने बोला खिचड़ी, बंगाल में भी दुर्गा माँ को खिचड़ी काफी चढ़ती है अष्टमी के दिन। तो ये भी मतलब एक क्रॉस कल्चर चीजें हैं जो काफी पॉपुलर हैं दोनों ही स्टेट्स में। तो मे बी इनका, मैं बताती हूँ। जो खिचड़ी, खिचड़ी अक्रॉस इंडिया में बहुत जगह पर आपको मिलेंगे, नॉट ओनली उड़ीसा, बंगाल, आपको नॉर्थ यूपी में भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन जो भोग चढ़ाया जाता है, जैसे खिचड़ी का मेजर जो होता है, हमारा तबीयत जब खराब होता है तभी, बिकॉज इट्स अ लाइट फूड फॉर द लाइट मील, इट्स नॉट हेवी, लाइट मील होता है। सो जगन्नाथ पे मैंने जो 10 बजे जो हम देते हैं ना, तो यहाँ पर 4 to 5 टाइप्स ऑफ खिचड़ी बनती है। अगर नॉर्मली घर में देखेंगे तो खिचड़ी एक किस्म से, अगर आप मिक्स्ड खिचड़ी बनाते हैं, इसमें बहुत सारे, किसी में ओनली जिंजर और हींग से बनता है एक खिचड़ी, ठीक है। वो एक बस ऐसे ही, मतलब कुछ मूंग दाल से, बस मूंग दाल जाएगा खिचड़ी के अंदर और कुछ नहीं जाएगा। एंड किसी में लिक्विड पूरा पतला वाला खिचड़ी, 3-4 किस्म से खिचड़ी जगन्नाथ मंदिर में बनता है।
एंड जबकि बंगाल में अगर आप देखो तो वो पर्टिकुलर दुर्गा पूजा के टाइम में वो खिचड़ी बनाते हैं जो उसमें मटर डलता है, ग्रीन पीस एंड मूंग दाल, एंड इसका ये प्रसाद की तरह चढ़ाया जाता है दुर्गा को। तो ये तो अपने हिसाब से चढ़ाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ये फिक्स्ड है, इसी तरह ही खाना जाएगा। इट has been the भोग has never, the menu has never changed। वाओ, जब से वो मंदिर है तब तक आज तक सेम मेन्यू चलता है, मेन्यू का भी चेंज नहीं होता है, लेकिन सीजन के हिसाब से आपको मतलब जो वेजिटेबल्स है वो चेंज होते हैं और कुछ नहीं चेंज होता है। कभी मेक मिल्क सेंस। बेस्ड ब्रेड कभी चेंज नहीं होता है। सो एक चीज इतने दिनों से चल आ रहा है, सो इट्स बीन लाइक हम नहीं बोल सकते कि मैंने चेंज किया, राजा चेंज होते गए लेकिन कभी प्रसाद कभी चेंज नहीं हुआ। सो Beautiful. In a way, it's also preserving the culture of Odisha, you yes, know. Like a yes, lot of states have actually काफी recipes आज के डेट में forgotten recipes के अंदर आ गई हैं, lost हाँ, recipes का जो हो गया है। yeah. तो in a way ये कुछ dishes हैं जो शायद हमेशा surface पे रहेंगी। ये उसके पीछे भी मैं जो समझती हूँ, उसके पीछे जो ये मेन्यू का फिक्स्ड होना, उसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि जगन्नाथ मंदिर में ना, मैंने जैसे बोला कि इनके ऊपर एक कम्युनिटी डिपेंड करके आज तक राइट। चल रहे हैं, ठीक है। जो लोग उनके लिए ये बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनता है, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है, तो एक कम्युनिटी है जो उनका काम है बस मिट्टी का बर्तन बनाना, जिसमें एक बार ही कुक होगा एंड वो वेस्ट होता है, क्योंकि फिर अगेन वो मिट्टी में मिल जाता है। एंड यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड वी टॉक अबाउट, हम कितने सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी को बच मतलब ये बचते हैं इसीलिए एवरी डे परचेज होता है, एवरी डे वो डिस्कार्ड होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि मिट्टी से आता है, कोई पोल्यूशन होना कुछ नहीं है, अगेन वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ये एक कम्युनिटी हो गया। जो वाओ, लोग कुक करते तो उनमें 6-7 किस्म के मतलब जो कुछ लोग बस वेजिटेबल्स काटते, कुछ लोग असिस्ट करते, कुछ लोग कुक करते, एक कम्युनिटी है पूरा जो उनके। सो ये जो डिशेस है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन पासिस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि और हम जाके इवन इफ आई लर्न हाउ टू कुक आई कैन नेवर बी ए टेम्पल कुक, बिकॉज उनको लिए मतलब नॉर्मल एनी ब्राह्मीन ऑल्सो कैन नॉट कुक ओवर देयर। जैसे बाहर मंदिर में होता है कि आज एक मंदिर में एक पुजारी है, कल और कोई भी आके पूजा कर सकते, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। वही कम्युनिटी है जो उनके बेटे वही आके कुक करेंगे, विद नो अदर कम्युनिटी कैन एंटर इनटू द टेम्पल किचन। सो ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग जो अपनी जो फूड कल्चर को बनाने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसीलिए उसमें कोई मिलावट नहीं आया है वो जो फूड में, क्योंकि जो उनके पिता बनाते थे वही देख देख के बच्चे सीखे हैं और वही बनाते जा रहे हैं। सो अगर मैं बाहर से कोई जाऊं, मेरा अपना इन्फ्लुएंस में डालूंगी, जबकि वो इसीलिए आज तक टेस्ट वही है, कभी चेंज नहीं हुआ। I was about to ask this. Wow, beautiful. So आप दही के बारे में बताने वाले थे, I think. यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को मैं जो पढ़ती हूँ, लोग बात करते हैं कि जो रसगुल्ला वार एंड एवरीथिंग, बट कोई बोलता है कि फटी, बिकॉज उड़ीसा एंड बंगाल आप देखा जाए तो ये एक ही स्टेट था, बाद में ये डिमार्केशन, पॉलिटिकली डिमार्केशन बना। अगर आप बंगाल में भी जाओ, ईस्ट में भी कुछ अलग है, वेस्ट में भी बंगाल में भी अलग अलग। सो ओवरऑल आप उसको बाउंड्री में मत डालो, लाइक यू नो बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल वर ए कॉमन स्टेट था। उसके बाद पहले बंगाल गया, उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग है। तो उड़ीसा के अंदर भी चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे, खाने में कोई भी तालमेल नहीं रहेगा। लेकिन कमिंग बैक टू मिल्क, इसका इसलिए है कि जब हमको हमेशा लगता है कि कृष्णा जी से मतलब ये इनकारनेशन है विष्णु के, सो मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स उनको तो फेवरेट है। लेकिन दही का एक अगर आप वो पुरुषोत्तम देव एक राजा थे, तो वो गंगा डायनेस्टी के सपोज वो गंगा डायनेस्टी के ही थे। तो वो जो कांची साउथ के और जो कांचीपुरम आप बोलते हैं ना,
तो उस वक्त वो कॉन्कर के लिए कांची जा रहे थे, वो कांची यात्रा होता है, यात्रा जो जा रहे थे तभी। तो वो व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग देयर, सो उन्होंने कांची जब पहुंचे, वहां की जो राजकुमारी थे पद्मावती, उनको वो पसंद आ गए, एंड बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ठीक है। तो वो जब मतलब प्रपोजल्स लेके वो सब ठीक हो गया, वो वापस आए, तो उसके बाद लड़की के पिता ने प्रपोजल्स देते हैं ना शादी के लिए, तो उनके मंत्री को भेजा कि प्रपोजल्स लेके तुम जाओ। तो वो लेके आया उनको, राजा ने इधर आके उनको एक्सेप्ट किया। और उस वक्त हमारा रथ यात्रा हो रहा था, रथ यात्रा की टाइम, जबकि एनुअल टाइम होता है जब जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर घूमने के लिए जाते हैं अपनी भाई और बहन को लेके। ठीक है, एनुअल हम जैसे पिकनिक बनाते हैं, वो भी पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं एनुअली। तो राजा ने उनके जो कांची के जो आए थे मिनिस्टर, वो प्रपोजल लेके उनको बोला कि आप आए हैं तो आप कुछ दिन के लिए रह जाइए इधर। रहने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि ये रथ यात्रा देख के जाएंगे। तो वो भी रुक गया। तो रथ यात्रा में एक परंपरा है कि जगन्नाथ की, मतलब हमारे जो पुरी के जो राजा है ना, मतलब उनका एक है कि जगन्नाथ सबसे बड़े हैं, तो उनका जो चैरियट होता है जिसके ऊपर वो बैठ के जाते हैं, उसको ब्रूम को साथ जो सफाई होते हैं, वो पहला उनका सेवक होते हैं राजा। पहला सेवक होते हैं उनका राजा। तो उनको वो ब्रूम से उसको साफ करना पड़ता है। वो ब्रूम भी सोने का है क्योंकि वो राजा है, बिकॉज ही इज अ किंग। सो तो उनका मतलब जगन्नाथ एक बड़े राजा हैं, उनका भी नौकर भी एक राजा ही है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पूरी किंग। वो भी वो हर रथ यात्रा में वो आके उस छेरा पहरा बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको ब्रूम के साथ उस क्लीन करते। तो ईच राजा, जब ये पुरुषोत्तम देव थे, तो पुरुषोत्तम देव का भी वही काम था कि जब सब हम देखते हैं राजा जब जाके, तो ये जो बंदा आया था उसको समझ में नहीं आया। वो देखा कि ये खुद बोल रहा था कि ये बंदा राजा है, और वो तो आके स्वीपर एकदम छोटा सा काम कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है। तो उसको पसंद नहीं आया। तो वो जाके पद्मावती के फादर को बोले कि ये वाला, मतलब यहाँ पर हम शादी नहीं करेंगे, ये छोटा, मतलब बहुत छोटा काम करता है, हमें झूठ शायद बोला है और ये बहुत छोटा काम करता है। तो उस हिसाब से वो शादी टूट गया। ठीक है। तो उस नेक्स्ट उनको स्वयंवर रचाया गया पद्मावती का। तो और इसमें इस पुरुषोत्तम देव को बुलाया भी नहीं गया, क्योंकि बिकॉज दे हैव डिस्कटेड विद दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारा एक परंपरा है जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी हमेशा अपनी, मतलब उनको जब पता चला कि उनके वजह से, इस परंपरा की वजह से एक शादी टूट रही है, सो वो और बलराम जी उनके बड़े भाई, वो दो सोल्जर की वेश में उनके साथ, मतलब फिर से वही, मतलब स्वयंवर में ये राजा भी जा रहे थे, क्योंकि कॉन्कर करने के लिए उनको गुस्सा आया था कि उन्होंने मना किया, तो इनके साथ गए थे। तो रास्ते में एक गांव आता है जिसमें उसको वहां पर माणिको पटना बोलते हैं। माणिको एक जो ग्वाला है ना, वो लड़की लेडी का नाम है माणिको। पाटना मतलब पाटना में इट्स अ विलेज। हाँ। सो उस विलेज में वो लोग जब जा रहे थे, तो जगन्नाथ और ये एक जगह पे रुके, और लड़की दही बेच रही थी। उन्होंने उनसे दही खाया था, उस लेडी से, माणिको से दही खाया था। तो उनको वो दही इतना पसंद आया जगन्नाथ जी को, उन्होंने अपना मतलब रूबी वाला जो रिंग है ना, उनको देके, उस समय तो पैसा नहीं था, उसको क्या, उसको देके गए थे। वो बोले जब राजा आएगा इसको दिखाना, जब इस तरह इस रास्ते में जब आए तो उनको दिखाना। ये देके चले गए। देन दे वेंट ऑन टू विन दैट कांची अभियान। कांचीपुरम को कॉन्कर किया राजा ने। और जब राजा लौट रहे थे, तभी उस जगह पे वो रुके। उस जगह पे जब रुके, तो उस लेडी ने उसको वही वाला दिखाया कि आप यहाँ पर, आपके कुछ लोग मुझे ये देके गए थे। तो राजा को समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं दे सकता, कोई सोल्जर कभी भी नहीं दे सकता, रूबी का उनके पास आएगा कहाँ इतना बड़ा। दैट मीन्स उनको समझ में आ गया कि राजा मतलब एक आदमी के रूप में भगवान जी खुद उनके साथ सोल्जर बन के गए थे, इसीलिए उन्होंने वो मतलब इतना बड़ा जो है ना कांची को जीत सके आके। तो
उसी दिन से उन्होंने नॉट ओनली ही गिफ्टेड दैट लेडी, वो जगह को माणिकपटना को फेमस किया वो दही में, वो जो दही दिया था, अब तक वो दही जाता है। इसीलिए दही माणिकपटना दही, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ वहां पर रुक के खाए थे। तो उस गांव में अभी भी एक दो वो लड़की का इमेज एंड वो जो दो सोल्जर के बेस में गए थे ना जगन्नाथ और बलभद्र, उनका मूर्ति आज भी पूजा पाता है उस गांव में। तो इस वजह से हमको लगता है कि एंड वो दही का एक खासियत है, वो दही जो है ना वो बैम्बू के बास्केट में बनता है। नॉर्मली हम दही कटोरी में मतलब स्टील के बर्तन में डालते, लेकिन वो बैम्बू बास्केट में वो दही जमाया जाता है, और वो दही ना खट्टा नहीं होता है मिनिमम 4-5 दिन तक। पता नहीं, मे बी इट्स अ वेरी थिंग, हम ये ह्यूमिड क्लाइमेट है, अगर कैसे नहीं होता है आज तक किसी को नहीं पता। इसीलिए फेमस है वो माणिकपटना दही जो है, वो जगन्नाथ जी को पसंद है, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में आपको दही का प्रचलन आज भी है। तो स्प्लिट मिल्क एंड ऑल दोस कंट्रोवर्सी मैं नहीं जानती, बिकॉज दिस इज समथिंग टू डू इन दैट कि उनको पसंद है, जो अगर उनको झूठा भी पसंद है तभी दिया जाता है। जैसे आप बहुत सारे जानते हैं ना, होते हैं ना, भगवान को, राम जी को भी अहल्या ने भी ना चुन चुन के दिया था, मतलब जो बेर खट्टे होते थे वो खुद पहले खाती थी, उसके बाद राम जी को देते थे। सो ऐसे होता है, जो भगवान को पसंद आते हैं वो बन जाता है प्रसाद। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है कि स्प्लिट मिल्क नहीं होता है कि नहीं होता। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो दही एंड इसका प्रचलन नॉर्थ एंड इसमें से अलग है, इसीलिए हमारे यहाँ पर से, क्योंकि एक भक्त को पसंद आया था, मतलब राजा को पसंद आया था, और उनको इतना पसंद आया था कि आज तक वो परंपरा चल रही है कि दही का यूज होता। तो जो दही आज जाती है वो उसी विलेज से जाती है? हाँ, वैसे ही, मतलब वही एक फेमस होता है वहां का दही। मतलब दही का प्रचलन वहां से नहीं जाता है, लेकिन दही का प्रचलन मंदिर में है। ओके। सो जो छेना हो गया वो कैसे होता है, दूध को फाड़ने से ही छेना होता है, राइट? तो वो जो लॉजिक होता है ना, वो क्यों पसंद है, इसीलिए पहले सिंपल सी बात है, ये कृष्णा का अवतार है, ठीक है? तो कृष्णा एक ग्वाले परिवार में बड़े थे, तो उनको क्रीम, दूध, छेना, दही, ये सारे चीज पसंद है, क्योंकि ग्वाले परिवार में ऐसा नहीं होता है कि स्प्लिट होता है, ऐसा होता है, जो भी बचता है उसमें से बनता है। सो सिंस इनका ये अवतार है, उनको ये सारे चीज भोग में चढ़ाया जाता है जो कृष्णा जी को पसंद है। नॉर्थ में कृष्ण जी को मक्खन काफी ज्यादा, सफेद मक्खन जो बनता है वो यहाँ तो पर, मतलब पूरा या हांडी फोड़ने का, वो तो पूरे इंडिया हाँ, में ही रहता है। तो अभी यहाँ पर भी जन्माष्टमी भी सारे आएगी। खाना दूर हाँ, यस, यहाँ पर भी मतलब सारे के सारे दही घी में ही बनता है, जो बटर जैसे बाहर से खरीदा नहीं जाता है, उनका ही होता है। मंदिर में अपना वाह। इंडिजिनियस थिंग्स चलता है, तो वो खुद ही, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे आर नॉट लाइक जब भी कुछ बाहर से खरीदते हैं, दैट मीन्स दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, और दे आर गिविंग सॉर्ट ऑफ लाइवलीहुड टू पीपल। सो ही इज इन अ गवर्नमेंट इटसेल्फ। वाह, मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर एक टाइम में एक हर रोज 56 भोग बन रहे हैं तो एक दिन में कितना खाना बनता होगा, एंड देन कितने लोग वहां काम करते होंगे। ओ माय गॉड। अराउंड 600 के करीब कुक्स है जो काम करते हैं, एक कम्युनिटी वाइज कम्युनिटी, मतलब अराउंड 400 के करीब होते होंगे, मतलब जो कि हेल्पर होते हैं, एंड 200 के अराउंड जो कुक्स होते हैं, जो लोग काम करते ओ हैं। माय गॉड। एंड माना जाता है कि 1 लाख की भी करीब लोग भक्त आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द दिन में एक मील में नहीं, लेकिन वहां पर खाना कभी किसी के लिए आज तक कम नहीं कम पड़ा। नहीं पड़ता। कम नहीं पड़ा, पर कैसे होता है ये किसी को भी नहीं पता, मतलब हाउ दे कैलकुलेट, कैसे करते हैं कि कभी कम नहीं पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि मंदिर में ना आज भी पहला खाना लक्ष्मी जी बनाते हैं, जगन्नाथ जी की वाइफ। आज भी मतलब जो उनके वहां पर अगर आप मंदिर में जाए, मंदिर के अंदर आप किचन को नहीं देख पाएंगे। सो हम लोग जितने सारे लोग हैं ना, उनसे बात करते हैं, जो कुक करते हैं, उनसे बात करके पता चलता है कि उसके अंदर जो पहला खाना, मतलब दे इनवाइट लक्ष्मी टू कुक, इसीलिए वो खाना इतना टेस्टी बनता है। लेकिन साल में 2-3 बार वो खाना अच्छा नहीं लगता मंदिर का, जिस बार लक्ष्मी नहीं बनाती, जब
जगन्नाथ जी उनको छोड़ के जाते हैं अपना मायका घूमने के लिए, और उनके वाइफ को लेके नहीं जाते हैं बहन, और उस वक्त वो खाना अच्छा नहीं लगता। मतलब जिस टाइम में, और जिस टाइम में एक पिकुलियर होता है कि जैसे वाइफ बनाती है तो अच्छा लगता है, सेम फूड वही बनाते हैं, लेकिन उस दिन उतना टेस्टी नहीं बनता है वो खाना। ओह माय गॉड, वाओ! एक मतलब छोटी छोटी कहानियां कितनी इंटरेस्टिंग है ये एक मंदिर के अंदर। वाओ! मतलब ऐसा बहुत। लग रहा है पूरा एक दरबार चल रहा है मंदिर में, खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं। वाओ, मतलब अमेजिंग। तो जगन्नाथ टेम्पल में भी द ओनली थिंग विच रियली अट्रैक्ट्स इज दैट उसमें कास्ट का कोई ये नहीं है। हिंदू है, मतलब नॉन हिंदू नहीं जा सकते उसके अंदर, लेकिन हिंदू में है ना जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत पहले से ही यहाँ पर नहीं है, ओह वाओ! बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग सा था, जो लक्ष्मी है उनकी वाइफ जो है ना, शी जस्ट लाइक एनी मॉडर्न वुमन। अब अगर आप हम बोलते हैं ना भगवान है वो पुराने हैं, अगर जगन्नाथ को आप समझने की कोशिश करोगे ना, उनका उनका सोशल मैसेज है, क्योंकि ये तो कलयुग का एक अवतार है, जैसे हम लोग अभी जैसे हैं कलयुग में ही है। सो हम तो मतलब राम सीता वाला जमाने में है वो तो नहीं, बहुत तो पुराना। हमें बुरा, तो वही है ना, तो कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन हम राम सीता को मानते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि राम जैसा बने या सीता जैसे बने, नहीं हो सकता। तो जगन्नाथ मतलब लक्ष्मी जी उनके जो वाइफ है ना, उनका एक पूजा होता है हमारे उड़ीसा में, वो मार्गशीर मतलब विंटर में आता है, ठीक है। उसमें हर थर्सडे में, 5 थर्सडे में हम उनको पूजा करते हैं। तो उन्होंने जब शादी हुआ था तो जगन्नाथ से बोले थे कि मुझे एक दिन के लिए मंदिर के बाहर जाना है, मतलब सुबह से वो जाते हैं मंदिर, मतलब घूमने के लिए, हर घर में घूमते हैं। जो लक्ष्मी जैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएगी, साफ सुथरा नहीं करोगे, तो वो जो कॉन्सेप्ट है, तो उनको मतलब वो छूट दी गई थी कि उस जमाने में लेडीज को बाहर जाना मतलब नामंजूर था, कोई भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन जगन्नाथ जी ने अपनी वाइफ को वो परमिशन, तो वो परमिशन दिया था। तो एक बार वो गए थे तो उनके घर में क्या हुआ कि वो एक सिर्फ छोटे जात की है ना, जो बाहर स्वीपिंग करते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है स्वीपिंग का। वो जो बाहर मंदिर के बाहर, वो लोग मंदिर नहीं आ सकते थे कास्ट सिस्टम की वजह से। तो ये जब गए घूमने के लिए, उस दिन पूजा में देखा हर कोई सो रहा था, किसी के घर साफ सुथरा नहीं है, किसी का बिखरा हुआ, मतलब आज पूजा है लेकिन कोई उठा नहीं है, वो बहुत जल्दी मंदिर दिन होते होते वो आ जाएंगे मंदिर को, इसलिए वो चले गए थे। तो एक जगह पर देखा, एक श्रिया करके वो लड़की है जो बाहर ये ब्रूम लेके साफ करती है, उसका घर देखा, गरीब है बहुत, लेकिन उसको साफ सुथरा घर देखा, उसके अंदर उसने खाने, तब उनको वो घर बहुत पसंद आ गया। तो वो उनको बोले कि तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो वो बोले मुझे क्या मांगना है, मेरे पास क्या है, मैं तो तुम पूजा भी नहीं करते। तो वो उसको प्रसन्न होके उन्होंने पूरा उनका महल वो सोने का बना दिया था, ठीक है। तो जब वो घर में आए तो बलराम जी जो जगन्नाथ के बड़े भाई है, उनको पसंद नहीं आया कि ये एक नीचे जाति के लड़की के घर में गए थे बहू होके, ठीक है। तो उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, जगन्नाथ को बोला कि देख तू अपनी वाइफ को कंट्रोल में रख, वो मतलब जैसे होता था ना नॉर्मल घर में, कंट्रोल में रख, वो किसी को मान नहीं, तुमने इतना फ्रीडम दे दिया कि वो किसी के घर में ही जाती है, आज इसके घर गई, कल उसके घर गई, और वो आके मंदिर में आती है, हमारे लिए खाना बनाती है, तो हमारा तो वो जो हम तो थ्रेड डालते हैं ना ब्राह्मीण होके, एक जो नहीं थ्रेड है। डालते, वो खराब हो जाएगा ऐसे। तो जगन्नाथ जी बोले नहीं, उनको तो मैंने बोला था वो ऐसे नहीं है, वो पूजा है इसलिए नहीं। तो वो जिद पे आ गए कि तुम अपने बीवी को छोड़ोगे या अपने भाई को छोड़ोगे। तो उस जगन्नाथ उस वक्त होता था कि अपना भाई जो बड़े होते ना उनका मानना बहुत जरूरी, तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला कि तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। तो लक्ष्मी जी ने पहली बार अपना घर छोड़ा था, तो दिस इज अ मैसेज। वो जब घर छोड़ के आई तो उन्होंने इनको सब सब कुछ ले लिया था उनका, मतलब जब सो के उठे उनके पास कुछ भी नहीं, मंदिर में कुछ भी नहीं छोड़ा था, इसलिए नहीं छोड़ा था कि अगर मैं एक भगवान होके अगर मेरे को मेरे हस्बैंड छोड़ सकते हैं, तो अगर ये प्रथा हमको एक्सेप्ट में कर गई ना, तो आने के बाद जो जितने सारे लड़के लड़कियां होंगे या लेडीज होंगे ना, उनके लिए कोई राइट्स नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने गए तो घर छोड़ के,
भगवान को एक मतलब 6 महीने के लिए खाने को नहीं मिला, दर दर भटकते रहे दोनों, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। वो ऐसे करते थे, जिसके घर जाते थे खाने के लिए मांगने के लिए, उनका खाना ही बर्बाद हो जाता था। वो लक्ष्मी जी वो करते थे अपने हिसाब से, ताकि वो खुद उनके घर आए, उनको उन्होंने ही खाना दिया, उन्होंने गलती अपना माना, और उस दिन के बाद हुआ कि जाति मतलब समाज में वो छोटे बड़े का कुछ, मंदिर में हर कोई आ सकता है, हर कोई ब्राह्मण एक छोटे आदमी से खाना खा सकता है, क्योंकि मंदिर का जो खाना खाते हैं ना हम लोग उधर बैठ के, अगर आप खाते होंगे, कोई भी आके आपकी प्लेट से कुछ भी लेके चला जाएगा, यू विल नॉट से नो, बिकॉज मंदिर में खाने के ऊपर हर किसी का हक है। मतलब ऐसा नहीं होता, एक ब्राह्मण भी बैठा होगा और एक एकदम छोटे जात का आएगा, तो इसीलिए ये प्रथा बंद उस जमाने से बंद हो गया था कि मंदिर में ये नहीं रहेगा, छोटा बड़ा का भेदभाव कभी भी नहीं रहेगा। ये वाला तब से था, बिकॉज ऑफ दिस। सो इसीलिए लक्ष्मी, हम लोग लक्ष्मी को एज अ मतलब एक स्ट्रेंथ के हिसाब मानते हैं, पैसे की देवी के हिसाब से पूजा नहीं करते, एज अ इक्वालिटी जो स्टाटस देते हैं ना, उन्होंने बोला कि एक अगर मुझे मेरे हस्बैंड ऐसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल लोगों की बात कोई भी बोलेगा अपनी बीवी को तुम घर से बाहर चले जाओ, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ मैंने उनको 6 महीने खाने के लिए नहीं दिया, बिकॉज आई एम ए गॉड, राइट। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, और किसी से शादी करके रह जाएंगे, तो वो वाला बिकॉज ऑफ द थिंग शी बिलीव्ड इन, शी स्टूड बाय द प्रिंसिपल। तो वो काफी फ्यूचरिस्टिक हमें लगा, मतलब मॉडर्न है अप्रोच, कभी भी जिसे हम रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए वो सब चीजें मानते हैं। जगन्नाथ जी का हर चीज होता है हमारे जैसा, उनको भी तबीयत होता है, क्वारंटाइन का आप बात कर लो, हर साल में, ये अभी जून में से वो 21 दिन के लिए, मतलब 3 वीक्स के लिए क्वारंटाइन में रहते हैं, उनको कोई दर्शन नहीं करता, क्योंकि वो नहाते हैं, उनका भी तबीयत खराब होता है, जैसे होता है ना फ्लू की तरह उनको होता है, तो वो छुप के, मतलब वो बंद होके रहते, दैट इज कॉल्ड क्वारंटाइन। आज इस जमाने में हम कोविड के वक्त क्वारंटाइन का मतलब समझ रहे, लेकिन हर साल वो क्वारंटाइन में जाते हैं, ठीक है, 21 दिन के लिए। उस वक्त वो कुछ नहीं खाते, आपको वो प्रसाद ना अच्छा नहीं लगेगा, उस वक्त का जो प्रसाद आता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का मन नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड का तबीयत खराब है, वो जैसे जैसे खाना बनता है वो इतना टेस्टी नहीं बनता। तो जब उसके बाद जब बनेगा ना खाना, सिर्फ आप अभी अगर जाओगे, जब जगन्नाथ जी को आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो अभी का जो प्रसाद है उसमें उतना टेस्ट नहीं होता, यू कैन इजीली इमेजिन। इस लोग बोलते हैं कि इसको लक्ष्मी जी ने नहीं बनाया, इसको हम लोगों ने बनाया है, ऐसे ही बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टिडबिट्स है मंदिर के बारे में, आराम, मतलब ऐसे भी। और छोटी सी और एक बात बताती हूँ, जगन्नाथ मंदिर में जो भोग होता है, पहले जो कुक होते हैं वहां से जाता है खाना, जगन्नाथ को ऑफर किया जाता है, ठीक है, तब वो महाप्रसाद नहीं बोला जाता है, वो जस्ट खाना होता है। उसके बाद वो खाना जाता है बिमला शक्तिपीठ, उसके अंदर एक टेम्पल है बिमला का टेम्पल, वहां पर से वो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो डिवोटी को लिए दिया जाता है, जगन्नाथ के साथ डायरेक्टली डिवोटी तक नहीं आता है। क्योंकि ये भी एक कहानी है, क्योंकि बिमला जी जब थे ना, जब जगन्नाथ टेम्पल बना था, तब उसमें मंदिर तो था, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है ना भगवान का, तो विष्णु तो ब्रह्मा करने वाले थे, तो ब्रह्मा आए नहीं थे, ब्रह्मा तो मतलब अपने ध्यान में मगन रहते, तो आए नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, तो उस वक्त ये बिमला जी खाली टेम्पल पड़ा था ना, तो ये देवी है, तो वो आके रहने लगे। तब जब एक्चुअली जगन्नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा आए, तो देखे कि ऑलरेडी समवन इज स्टेइंग इनसाइड द टेम्पल, तो उन्होंने बोला कि ये तो जगन्नाथ का मंदिर है, लेकिन उनको तो निकाल नहीं सकते। सो ये कंडीशन हुआ कि जब तक, उन्होंने बोला इस कंडीशन से मैं इस जगह से पीछे टेम्पल में जाऊंगी, ताकि जो खाना भगवान का झूठा मेरे पास लगाया जाएगा, पहले जाएगा भोग जगन्नाथ जी को, उसके बाद मेरे पास आएगा, उसके बाद ही जाके जाएगा। तो आज तक भी वही चीज बरकरार है उस टेम्पल में। तो पहले जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है, उसके बाद बिमला के पास जाता है, उसके बाद उसको महाप्रसाद बोला जाता है। ये मेरी छोटे छोटे चीज है, वो मंदिर में तो ये आज भी मेंटेन होता है। वाह, ऐसे आई थिंक काफी 5-6 किचन हैं इंडिया में, जो टेम्पल किचन हैं, जहाँ पे इतना बड़े बड़े क्वांटिटी में। साउथ में एक है, देन हम लंगरों की बात करते हैं, जब लंगर लग रहा है तो कितना भी खा लेते हैं, मतलब ये अपने आप में आई थिंक मंदिर और गुरुद्वारे की जब हम बात कर रहे हैं,
तो अपने आप में वो खाने का ट्रेडिशन इतना स्ट्रांग है Yes. कि वो कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहा है, एंड आप खाना खिला रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। Yes. मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू इवन अंडरस्टैंड। लेकिन एक अगर हम लंगर की बात करें तो लंगर में आज भी जितना बहुत सारे मैंने देखा है टीवी शोज वगैरह में कि आज भी वो मतलब मोटराइज्ड हो गया है, रोटी बनाने के मशीन लग गया है, बड़े बड़े जी, बर्तन, मतलब तो राइट जस्ट। राइट। लेकिन आज भी जगन्नाथ मंदिर में सेम है, वो भी गैस के चूल्हा नहीं है, वही बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, वही चूल्हा है। वो चूल्हे का टेक्निक्स कुछ अलग है, क्योंकि किसका 3 मुंह वाला चूल्हा है, किसका 5 है, किसके 7, मतलब वो जो टेक्निक आज भी है। लेकिन जस्ट आई डोंट नो हाउ इट इज इतना मैग्नीट्यूड में इतना सारा खाना उसी किचन में, कोई मैकेनाइज नहीं है, बनता जा रहा है। तो ये भगवान का आशीर्वाद ही होता तभी बन पाता है, नहीं तो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर एनीवन टू मेक सच अ ह्यूज मील एवरी डे। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ऑल्सो जैसे हम जब भोग की बात करते हैं तो ये तो हाँ, ऑब्वियस है कि उसमें लहसुन नहीं जाएगा, प्याज नहीं नहीं। जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ चीजें हैं जो उसमें नहीं जाती हैं? क्योंकि जब uh, हम इन हाँ। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जब हम बात करते हैं तो मैं जब अपने घर में सुनती आ रही हूँ, कभी ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़ा नहीं यूज करते हैं, बैंगन का यूज नहीं देखा है मैंने, उड़द दाल मास कहते हैं हम्म। उसको, वो नहीं हम्म। जाता है। बट मतलब जब मंदिर के भोग की बात करते हैं तो वहां पे कैसे रहता है? जगन्नाथ मंदिर में भी वही है, इट्स अ वेरी ओल्ड टेम्पल, ठीक है। जब इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिजीनियस, मतलब उस जमाने में जब टेम्पल हुआ होगा अराउंड 15 सेंचुरी में, तो उस वक्त हमारे वहां पर जो जो वेजिटेबल्स है, तब पोटैटो नहीं था, पोटैटो इस जी। बहुत बाद में आया हम्म। पोर्तुगीज के थ्रू से। तो उस वक्त पोटैटो नहीं था, तो आज भी मंदिर में तो पोटैटो का सब्स्टिट्यूट तो हम लोग याम, तो वो इंडिजीनियस है ना। हर किसी सिटी में इंडिया की थ्रू आउट आप देखोगे तो जिमिकन तो यूज होता है ना, राइट। मतलब वो तो हमारा देसी ही है ना, देसी आलू हम बोलते हैं। तो वो मंदिर में यूज होता है, सो पोटैटो यूज होता है। तो टोमेटो भी सिमिलर है, टोमेटो हमारे कल्चर में नहीं है, वो बहुत बाद में आया राइट। हाँ। इंडिया में। तब जब मंदिर था तब टोमेटो नहीं था, तो आज भी टोमेटो यूज नहीं होता है। बैंगन जैसे बोला, बैंगन कभी नहीं यूज होता है मंदिर में। एंड कोई बिटर चीज नहीं यूज होता है, जैसे करेला वगैरह, ओके। क्योंकि भगवान जी को, क्योंकि अगेन यू गेट बैक टू दैट बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम अ मिल्क, सो उनको मीठा खाना बहुत पसंद है, सो बिटर चीज उनको नहीं दिया जाता है, सो बिटर गोड का यूज नहीं होता है। उसके बाद आपको नट्स, मैंने कैशू नट्स भी यूज नहीं होता है, रादर आलमंड्स यूज होता है, क्योंकि देसी आलमंड जो होता है ना, पिस्ता, विदेशी पिस्ता। क्योंकि काजू भी हमारे यहाँ बहुत बाद में आया, तब नहीं था। हाँ। तो एट दैट टाइम, सो एंड जो स्पाइसेस यूज होते हैं उनके यूज होते हैं, जैसे कि बड़ी इलायची होता है, छोटी इलायची नहीं यूज होता है। बड़ी इलायची आपका ब्लैक पेपर का यूज होता है, नटमेग यूज होता है उनका। ये सारे जो नट्स है आपको, मतलब स्पाइसेस है, आपको लगता होगा उड़ीसा में तो नहीं बनता था, मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर दी स्पाइसेस। लेकिन ये सारे चीज तब तब इस वक्त भी ट्रेडिंग का हमारा जो था ना, हम लोग बाली, सुमात्रा, उड़ीसा का वो सेलिंग ट्रेडिशन तभी था। शायद वो जो यहाँ से खाना चाहता था, मतलब थिंग्स वुड बी, चावल वगैरह दे के वो स्पाइसेस आता होगा, एंड वो स्पाइस मंदिर में यूज होता है। सो लेकिन रेड और चिली। सवाल, ग्रीन चिली, रेड चिली कुछ नहीं यूज होता, क्योंकि ओके। बाहर आप नहीं था। बाहर मंदिर से जब बाहर आते हैं तब आप खा सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर चिलीज यूज नहीं होता, उसके जगह पर पेपरकर्न, उसको हीट के लिए पेपरकर्न यूज होता है, और कुछ नहीं, आप चिलीज नहीं यूज किसी होता है। आप किसी इंडियन। गार्लिक ऑनियन तो ऑब्वियसली तो यूज होता नहीं है, ओनियन राइट। एंड गार्लिक उसमें, ऑब्वियसली। बस घी यूज होता है, बस वही है। और सीजनल है, जो सीजन के हिसाब से जो जो मिलता है, इसको छोड़ के अब सब सब यूज होता है। हाँ। सो बेसिकली लोकल प्रोड्यूस को काइंड ऑफ प्रमोट कर रहा है आइडिया। एंड अगर आप किसी इंडियन को बोलेंगे कि खाने में हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं एंड रेड चिलीज और ग्रीन चिलीज नहीं डाल रहे हैं, देन आप बोले गार्लिक भी नहीं डाल रहे हैं, तो लोग सोचेंगे ओहो पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। बट आई बेट, मतलब मैंने तो कभी पर्सनली नहीं खाया है,
बट आई एम श्योर कि मतलब जो वहाँ बनता होगा वो अलग ही टेस्ट होगा, और मतलब वो उतना टेस्टी कहीं कोई नहीं बना सकता, चाहे आप कितने भी मसाले डाल लो। वही है, उसका जो मसाले का कॉम्बिनेशन भी होता है ना, वो बहुत फ्लेवर के लिए, मतलब आप मंदिर में जाओगे अभी आप इत्र का इस्तेमाल होता है, आप हम लोग वनीला एसेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मंदिर में ना वो जैस्मिन फ्लावर है ना, वो यूज होता है फॉर गेटिंग द फ्लेवर आउट ऑफ दैट। सो जितने हमारे आसपास जो हम बोलते हैं ना लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है, एक अच्छा खाना बनाने के लिए आपको मसाले की जरूरत नहीं होता है। आपको जानना जरूरी होता है सेंसेस को कौन सा जो इग्नाइट करता है, हमारे सेंस जितने 5 सेंस होते हैं उसको कैसे, आपका टेस्ट बर्ड को कैसे करता है, तो उस हिसाब से खाना बनता है। एंड एब्सोल्युटली आप अगर खाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिना प्याज और लहसुन के खाना कैसे, मतलब हर मंदिर का खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने जिस टेम्पल में गई हूँ तो उसमें तो अलग, क्योंकि इसमें हींग का इस्तेमाल जो होता है ना, हींग का वो, क्योंकि एक तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड सेकंड होता है कि वो एक फ्लेवर अलग देता है। नारियल का बहुत इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो नारियल हमारे खाने में, सो मिठास तो उसमें भी आ जाता है। दाल जैसे बोला, ब्लैक दाल तो यूज होता नहीं है क्योंकि वो तो मांस बोला जाता है। सो अरहर की दाल, मूंग दाल, ये 2 दाल ज्यादा। एंड उसको बंगाल ग्राम जो उसको सोला बोलते हैं हम लोग, उसको वो यूज होता है यहाँ पे। सो राइस का भी यूज होता है भोग में? यस, राइस हाँ, राइस तो मेजर ही, हम राइस का तो खिचड़ी में यूज होता है, प्लेन राइस होता है उनका, जो कानिका बनता है मीठा राइस, मीठा खिचड़ी, सब में राइस होता है, लेकिन उनके जो बासमती राइस ही यूज होता है, जो फ्लेवर्ड राइस है वो वहीं से आता है, उनका जो जमीन है ना जगन्नाथ का, तो वो लोकली ही ग्रोन, जो लोकल ग्रोन बासमती राइस होता है वो होता है। पार बॉइल्ड राइस यूज नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में पार बॉइल्ड राइस, कुक वाला अनकुक्ड राइस जो होता है, अरुआ बोलते हैं हम वो यूज होता है। बासमती पार बॉइल्ड नहीं, अनकुक्ड बासमती राइस वो मतलब होता है। आप कितना भी क्यूजीन को एक्सप्लोर कर लें, मंदिर के खानों को, मतलब ऐसा लगता है कि इतनी कहानियां हैं, इतना कुछ है। और बहुत सारे सेशन लगेंगे धीरे धीरे जब बात करेंगे, तो एक सेशन में डिफिकल्ट होता है सब। वेरी ट्रू। हाँ, वाह। सो थैंक यू सो मच अलका जी, मतलब ये काफी माइंड बॉगलिंग था, मतलब इतनी सारी कहानियां एक साथ पता चली हैं तो काफी एक्साइटमेंट भी हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है सुन के। तो आई एम श्योर कि 56 भोग जल्दी हम लोग को भी ट्राई करने को मिलेगा आफ्टर। जरूर आप आएंगे कोविड के बाद में, कभी भी आइए, एंड विल जस्ट लव टू होस्ट यू ओवर हियर फॉर अ मील। So amazing of you. Thank you so much for that. And thank you so much for joining in, for doing this for us in this time. And I think जितने भी लोग जो देख रहे हैं उन सबको भी thank you. And like this session was really very interesting. I liked it because कभी expect नहीं किया था कि एक 56 भोग, मतलब लगता है कि उसमें जानने के लिए सिर्फ वो 56 चीजों के बारे में ही है और कुछ नहीं है, बट वो स्टोरीज और किस तरीके से छोटी छोटी कहानियां दही की, चावल की, मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच ये हम सबके आगे लेकर आने के लिए। Thank you. I just really enjoyed this session. Thanks a lot.